Now come to page number 4.3 पे आओ. 4.3 फीचर्स ऑफ सप्लाई कर्व देख लिया. नाउ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई. सेम डिमांड जैसा है, डोर पुल कर लेना, डोर पुल कर लो. सेम डिमांड की तरह. डिमांड में क्या था? एक्सपांशन का मीनिंग द चेंज इन क्वांटिटी. ध्यान है किधर है? सामने. इधर इधर देखो, तुम दोनों इधर देखो सामने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन इन सप्लाई? बोलो चलो. Because of increase in price, keeping other factor constant. What is meaning of contraction in supply? Due to decrease in other factors remaining constant. So if I say there is a movement along the curve, ध्यान देना. If I say there is a movement along the same supply curve, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? Am I talking about expansion, contraction or increase or decrease? Expansion, contraction. Upward movement from left to right in supply curve denotes expansion in supply or contraction in supply? Upward movement. Upward movement moving from left to right. Let us say this is my supply curve. This is my original supply curve. This was the point X here, and now the moment is from X to X dash. Is it expansion or increase or contraction or decrease in supply? कैसे कैसे बोल रहे हो तुम? Now this is quantity का axis and this is price का axis. पहले यहां पर ये लेवल था. At this particular price, this much was the quantity supplied. Let us say this is Q and this is P. At price P, quantity Q was supplied. Price बढ़ गया, उसके कारण क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया. नाउ दिस इज Q dash. So because of increase in price of a commodity, if there is an increase in supply, it will be referred as expansion in supply. और contraction का मतलब downward movement along the same demand, same supply curve. Now we'll talk about the shift of curve. This is my original supply curve denoted by S. ये लेफ्टवर्ड मूव हो गया कर्व S dash and S double dash. Now tell me which one is increase, which one is decrease in supply? S double dash is increase in supply, or S dash is decrease in supply. What is meaning of increase in supply? थोड़ा डेफिनेशन फ्रेम करके बताओ, ट्राई करो, ट्राई टू फ्रेम द डेफिनेशन. इंक्रीज इन. बाकी लोग भी इधर के शांत क्यों बैठे? चलो बोलो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई? डिक्रीज इन सप्लाई refers to decrease in quantity supplied because of other factor, because of any other factor other than price of that particular commodity. मतलब अब सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, अगर प्राइस चेंज होने के कारण सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन. और अगर सप्लाई चेंज हो रहा है फॉर बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इट विल बी रेफर्ड एज इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड. Movement along the curve will happen in expansion and contraction, and shift of the supply curve will occur in increase or decrease. ठीक है. Leftward shift of supply curve is increase or decrease? Decrease. This is the leftward shift. ये ओरिजिनल है ना, यहां से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं. सो दिस लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई एंड राइटवर्ड शिफ्ट इज इंक्रीज इन सप्लाई. व्हाइल द मोमेंट अपवर्ड मोमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व विल बी रेफर्ड एज एक्सपांशन एंड डाउनवर्ड मोमेंट विल बी रेफर्ड एज कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, सप्लाई में तो डाउनवर्ड मोमेंट को एक्सपांशन बोलते थे. हाँ सॉरी, डिमांड के अंदर डाउनवर्ड मोमेंट को एक्सपांशन बोलते थे और अपवर्ड मोमेंट को कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे. क्यों ऐसा? Because of inverse relationship or negative slope curve. Now read this. अब तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा ये. Meaning यहां पे चेंज कर लेना. Expansion or contraction in quantity supplied take place as a result of change in price, while other factor influencing supply remains constant. Movement of the supply curve. Change in quantity supplied refers to downward or upward movement by a producer firm.
on the same supply curve. The position of supply curve remains the same. वो 8p पता नहीं क्या है. Example, the present price is P and quantity supplied is Q. When the price fall from P to P dash, the quantity supply reduce from Q to Q dash unit on the same supply curve. मैं ड्रॉ करके बता देता हूं. This is our original supply curve. This is price P, and at this price Q is the quantity supplied. अब प्राइस गिराकर देखते क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है. प्राइस गिराकर मैंने P डैश कर दिया, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश. सो लॉ ऑफ जो सप्लाई था इट इज होल्डिंग गुड इन दिस प्लेस. यहां पे कोई एक्सेप्शनल गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल गुड्स. तो नॉर्मल गुड्स के केस में विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर. विद डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाइड विल बी लेस. दिस लॉ इज होल्डिंग गुड हियर. एंड इफ देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी, इट विल बी रेफर्ड एज एक्सपांशन. And if there is decrease in quantity supplied because of decrease in the price of commodity, it will be referred as contraction. Now price को P से P dash कर दे, P double dash कर देते हैं. So quantity Q double dash. Now common sense है Q dash Q and Q double dash. This is the equation form here. ये equation समझ में आ रही है क्या तुमको? Q is greater than Q dash but less than Q double dash. ठीक है, इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, सिंपल स्टफ था. सिमिलरली व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम P टू P डैश, अभी इन्होंने इसको P डैश बोला है, इसको P डैश बोला, इसको P डबल डैश बोला, जो भी है अपना नोटेशन अलग था. तो यहां पे मैं चेंज कर देता हूं. Similarly when price rises from P to P double dash, the quantity supplies rises from Q to Q double dash unit on the same supply curve. अब इतना तुम पार्ट पढ़ो, increase and decrease in quantity supplied. ये जो यहाँ डायग्राम दे रखा है, ये इंक्रीज डिक्रीज का है या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन? इसको ऐसा एरो मार के ऊपर ले जाओ. हो गया, पढ़ लिया, कुछ डाउट? डिमांड का बिल्कुल रेप्लिका है ये टॉपिक, बस उल्टा रिवर्स करते जाना है अपने को. नाउ विल स्टडी सम ऑफ द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. मतलब अपने को कुछ अजम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे एंड वी हैव टू मेक दिस अजम्पशन गुड होल्ड. मतलब इन अजम्पशंस को अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. वी हैव टू कीप दीज फैक्टर कांस्टेंट. अगर ये फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो ही लॉ ऑफ डिमांड विल होल्ड गुड.
लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई विल होल्ड गुड। ठीक है, पहला क्या है इसके अंदर, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बुक बंद कर दो। वाई देयर शुड बी नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिख रहा है क्या बोर्ड पे, रीडेबल है क्या? चलो ठीक है, फिर रीड होना भी नहीं चाहिए। हाँ, वाई देयर शुड बी नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तुमको ही सुनाई दी क्या दूसरों की आवाज? मैं बोलता हूं। हाँ, तुम फंस जाते हैं ना कभी कभी अपन लोग। यू कैन डिस्कस। हाँ, आप बताओ। न्यूमेरिकल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर पाओगे कैसे? कॉस्ट, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो भी सप्लाई तो बढ़ सकता है ना। अगर वो गुड्स परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिसकी डिमांड ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो कंज्यूमर तो वैसे भी खरीदने वाला है। उसके पास भी उतने रिसोर्स नहीं। मैंने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो उसने उसके कारण मार्जिन भी, मतलब समझो 100 से 110 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका सेलिंग प्राइस था 200 रुपए, राइट? अब कितना मार्जिन इसको बच रहा है? 90 रुपीज। मैं बोल रहा हूं 200 में मत बेच, 220 में बेच, तो भी बिकेगा, उसकी कमोडिटी तो सेल होने ही वाली है। मैंने क्या बोला, गुड्स है परफेक्टली इनइलास्टिक। हाँ, तो वही न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाओ ना मेरे को। लेट अस से कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 100 रुपीज और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 200 रुपए मान लेते हैं, तो प्रॉफिट कितना अर्न किया? 100 अर्न किया। उसके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा चेंज हो गया उसका, और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 70 रुपीज। 70 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब वो गुड्स कितने में सप्लाई कर रहा है? 180 रुपीज में सप्लाई कर रहा है। ये एग्जांपल यहां पे, गुड्स 180 में सप्लाई कर रहा है, कितना मार्जिन अर्न कर रहा है? पहले उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 आता था, 200 में उसको सेल कर देता था, प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा था 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस 70 हो गया उसके लिए, बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड फैक्टर, कोई भी फैक्टर के कारण कॉस्ट प्राइस उसका 70 हो गया। नाउ ही हैज मेड हिज सेलिंग प्राइस टू बी 180 रुपीज। कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है? बताओ मुझे। अब 110 का प्रॉफिट कमा रहा है, क्या ये ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा या कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा? पर यार सेलिंग प्राइस तो गिर गई, और अपन ने तो लॉ ऑफ सप्लाई में यही पढ़ा था ना कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज मोर, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज मोर, देन ओनली ही विल बी मोटिवेटेड टू सप्लाई मोर, एंड इफ प्राइस इज रिड्यूसिंग ही विल सप्लाई लेसर क्वांटिटी। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे हैम्पर कर रहा है। दैट्स वाई वी नीड टू कीप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट। इसलिए यहाँ पे लिखा है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया तो ये सेलिंग प्राइस भी चेंज कर देगा, और कम सेलिंग प्राइस पे भी ये ज्यादा यूनिट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज उसका मार्जिन देखो ना, सेलिंग प्राइस कम करने के बाद भी उसका मार्जिन ज्यादा बच रहा है। इनफैक्ट सेलिंग प्राइस कम होने के कारण डिमांड भी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो to understand the law of supply, we need to keep cost of production constant. We need to keep change in technology constant. We need to keep taxation policies, weather condition, everything constant. क्योंकि अगर कोई भी, अगर एक आधा फैक्टर चेंज हो जाता है ना, because of that law of supply will not hold good. Law of supply क्या बोलता है? सिंपल लैंग्वेज में, इफ प्राइस इज मोर ही विल सप्लाई मोर क्वांटिटी, प्राइस इज लेस ही विल सप्लाई लेसर क्वांटिटी। पर यहां पे देखो ना, लेसर प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सप्लाई प्रॉपरली वी नीड टू कीप फ्यू फैक्टर्स कांस्टेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स को कांस्टेंट करेंगे? पहला है नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। सेम है, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई, इंप्रूव टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सकता है। नॉर्मल वेदर कंडीशन,
नॉर्मल वेदर कंडीशन का एग्जांपल दोगे? ओके, सो अंडर नॉर्मल वेदर कंडीशन का क्या मतलब है? एक एग्जांपल इसका ऐसे भी हो सकता है, इफ वेदर कंडीशन इज नॉट नॉर्मल, अगर रेन एक्सपेक्टेड थी और रेन नहीं आई है, ठीक है, या रेन एक्सपेक्टेड नहीं थी पर बारिश आ गई है, उसके कारण तुम्हारे क्रॉप्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, या वॉट एवर रीजन यू आर नॉट एबल टू डू प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ unfavorable weather condition, in that case production will get hampered, in turn supply will also get hampered, supply भी तुम्हारा change हो जाएगा. So weather condition should remain constant. Another thing is infrastructural facility should remain constant, मतलब it should not change. अगर better infrastructure तुम्हारी कंट्री में आ गया, या लेटर से तुम्हारे जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन एरिया है, उसके अंदर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, तो इसका क्या एडवांटेज है? सप्लाई कैसे ज्यादा होगा उससे? अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहला एग्जांपल अपन लेते हैं कि लेटेस्ट से तुम्हारी फैक्ट्री है, बहुत प्रिमिटिव स्टाइल में है, ऐसे पतरे का शेड वगैरह लगा के ऊपर टेंट वगैरह लगा के काम होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है और वहां से सप्लाई होता है. अगर यहां पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दिया, ठीक है, अब एक समझो 3 फ्लोर की तुम्हारी फैक्ट्री थी, समझो अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, पतरे का शेड नहीं है, किसी और चीज का शेड है, तो तुमको स्टेयर से चढ़ के जाना पड़ता था, लेकिन अब तुमने ऐसी इंप्रूव टेक्नोलॉजी ले आए कि अंदर ही लिफ्ट लगा दी. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मीन कि रोड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी तुम्हारा नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाएगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है. और अगर पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन में ईज रहेगा, ठीक है. पहले छोटे छोटे ट्रक आते थे, अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के कारण इंडिया के रोड पे बड़े ट्रक्स भी चलने लग गए, तो ज्यादा कमोडिटीज एक ट्रक में लोड कर सकते हैं, ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो, इसको किसी भी एंगल से कैसे भी रिलेट कर सकते हो. सो दिस थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट. नो चेंज इन अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नो चेंज इन अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. लेट अस से ग्राफाइट तुम एक्सट्रैक्ट करते हो अर्थ से, और इंडिया के अंदर ग्राफाइट का जो माइंस है ना, वो लिमिटेड ही माइंस है, लेट अस से ऐसा अज्यूम करते हैं. सडनली किसी ने नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा था और सडनली उसको वहां पे एक और ग्राफाइट माइन दिख गई, 1 2 3 बहुत बड़ा रिजर्व दिख गया उसको, ग्राफाइट की माइन दिख गई, तो ऑब्वियसली अब नेचुरल रिसोर्सेज तुम्हारे बढ़ गए, तो तुम ग्राफाइट का सप्लाई भी बढ़ा सकते हो. तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज भी कांस्टेंट होने चाहिए. तुमको क्या लगता है ये जो फैक्टर्स ये कांस्टेंट रखने के लिए बोले हैं, क्या रियल लाइफ में फैक्टर चेंज होते हैं क्या? पर ये फैक्टर अगर चेंज हो जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है सप्लाई पे इफेक्ट होने वाला है, और अगर सप्लाई पे इफेक्ट हो गया तो लॉ ऑफ सप्लाई नहीं अपन पढ़ पाएंगे. दैट इज व्हाई वी नीड टू कीप दिस फैक्टर्स कांस्टेंट. सो दिस इज द अजम्पशन हियर. नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर भी कल मैंने तुमको एग्जांपल बताया था, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई तो डिमांड भी चेंज हो जाता है, इंटर्न सप्लाई भी चेंज हो जाता है. So taxation policy also should not change. There should not be any change in taxation policy of the government. This is because if the taxes are reduced, supply will increase even after a fall in price. 100 रुपए की नोटबुक थी तुम्हारी, ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 रुपए था तुम्हारा, 18% लेटेस्ट से उसमें जीएसटी लग रहा था, कंज्यूमर को 118 में मिल रहा था, ठीक है. बंदे ने क्या किया, प्राइस 100 ही रखा, ठीक है, जीएसटी रेट हो गया 5%, टोटल कंज्यूमर को पे करना है 105. इस केस में सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, प्राइस चेंज नहीं हुआ तो भी सप्लाई बढ़ जाएगा. और इस बार क्यों चेंज हो रहा है सप्लाई? बिकॉज ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी. तो देखो ना, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है तो सप्लाई भी कांस्टेंट होना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ टैक्सेशन द फाइनल प्राइस इज गेटिंग अफेक्टेड. दैट इज व्हाई दे सेड दैट टैक्सेशन पॉलिसी को भी कांस्टेंट रखो. नो चेंज इन मॉनेटरी एंड ट्रेड पॉलिसी. सेम, मॉनेटरी और ट्रेड पॉलिसी चेंज हो गई तो सप्लाई चेंज हो जाता है. लेट अस से यू आर एक्सपोर्टिंग यूनिट, तुम एक्सपोर्ट करते हो और तुम्हारी कंट्री की ट्रेड पॉलिसी चेंज हो गई. तुम्हारी कंट्री मतलब तुम एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, और तुम्हारी कंट्री की ट्रेड पॉलिसी अब तुमको अलाउ ही नहीं कर रही है कि तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो यूएस को, तो क्या करोगे ऐसे समय?
प्रोडक्शन करके क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, तो इस समय तुम सप्लाई भी बंद कर दोगे, इनफैक्ट प्रोडक्शन भी बंद कर दोगे. सो दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन ट्रेड पॉलिसी. सो इन ऑर्डर टू लर्न द लॉ ऑफ सप्लाई वी नीड टू कीप दीज फैक्टर्स कांस्टेंट. कौन कौन से फैक्टर एक बार रिकैप देख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, वेदर कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेस, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी. समझा क्या? जेपा क्या? नाउ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. ओके, अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई है क्या बोलता है? वापस से रिपीट करना. प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज. तो एक्सेप्शन में क्या होगा? प्राइस इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज. एक्सेप्शन में यही होगा. इन केस ऑफ लेबर, अच्छा इसमें एग्जांपल डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है. पहला है लेबर सप्लाई. बुक बंद कर दो. लेबर सप्लाई. अपन लेबर को क्या देते हैं? वेजेस. और इंटर्न वो अपने को क्या सप्लाई करता है? उसका वर्क, उसके आवर्स, उसके टाइम अपने को प्रोवाइड करता है. तो यहां पे एक बहुत मस्त एग्जांपल लिया है अपन ने, वेजेस रेट लेबर. इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से. कॉपी नहीं होता ये क्या है? ठीक है, यहीं से पढ़ो. नाउ लेट अस से तुम लोग मजदूर हो, ठीक है, तुम सब लोग मजदूरी करते हो और तुम्हें 100 रुपए घंटे के हिसाब से पैसे भी मिलते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कर रहे? बहुत पैसे मिल रहे हैं. 100 रुपए पर आवर. ठीक है, दिन के 12 घंटे काम किए तुमने, 1200 रुपए, 36,000 रुपए महीना. मुझको भी दिया करो कुछ पैसे. इतने पैसों को क्या कर लोगे तुम? क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? घुमानी है. बिगड़ रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं मेरी क्लास के. मेरी संगत खराबी है, मेरी संगत खराबी है, सोच समझ के रहा करो. वेज रेट, समझो तुम गरीब मजदूर 100 रुपए कमाते थे एक घंटे के. ठीक है, तुम्हारी बीवी रोज तुम्हें मारती थी, इतना कितना निकम्मा आदमी मेरा, 12 घंटे काम करने पर भी 1200 रुपए ही लाता है. लिपस्टिक कितनी महंगी है तुमको क्या पता? जानू कितनी महंगी चीजें हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता. ठीक है, मारती थी उसको, रोज कूटती थी. प्रजा इसलिए पतला है, इतना मारती है उसकी बीवी, खाना नहीं देती उसको. ठीक है, और आधे मजदूर तो हमारे दारू पी के बेवड़े हो गए. 1200 रुपए ही कमाते थे ये दिन के. सडनली मेरे जैसे सज्जन इंसान ने इसको बोला, एक काम कर, मुझसे ना तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता. ठीक है, तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, मैं तुम्हें 250 रुपए घंटे के हिसाब से दूंगा. सडनली तुम मोटिवेटेड हो गए और बोले अब मैं 15 घंटे काम करूंगा, बीवी के जूते अब नहीं खाऊंगा, मैं दिन के 3,750 रुपए कमाऊंगा. खुश? अरे खुश? तुम्हारा 2.5 गुना बढ़ गया है वेज रेट. हाँ नहीं, ये मैंने नहीं बोला तुमको. सी, वहां तक आए नहीं अपन. मैंने बोला 250 रुपए घंटे के हिसाब से तुमको मिलने वाला है, तो तुम लालची भेड़ियों की तरह बोले अब 12 घंटे की जगह 15 घंटे हम काम करेंगे. क्यों? क्योंकि अब मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना है. बराबर है, ऐसा ही होता है. अगर तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे तभी तो तुम मोटिवेटेड रहोगे. अगर मैं यहां पे समझो क्या हो गया, 100 रुपए घंटे के हिसाब से मिल रहे थे, तो तुम लोगों ने बोला यार 12 घंटे ही काम करूंगा. ठीक है, जैसे ही तुम्हें ज्यादा पैसे मिल गए, ऐसे ही होता है. जब किसी को ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, काम करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहता है. किसी कंपनी के पियोन को देख लो, किसी कंपनी के पियोन को देख लो, उसकी सैलरी कम तो काम भी कम करता है. और वहीं वहां के मैनेजर को देख लो, रात रात भर क्यों बैठा रहता है वो? क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है. सैलरी ज्यादा है, इन शॉर्ट उसको मोटिवेशन ज्यादा है. ठीक है, तो तुम्हें 250 रुपए पर आवर के हिसाब से, क्या हंस क्या रहे हो इसके अंदर? 250 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं. तुमने बोला जिंदगी सुधर जाएगी. बीवी को तो बदल नहीं सकते, पर घर की परिस्थिति बदल देंगे. तो तुमने 15 घंटे काम करना चालू कर दिया. ठीक है, तुम्हारे ये काम को देखकर मैं इतना खुश हुआ, तुम्हारे काम को देखकर मैं इतना खुश हुआ, मैंने बोला यार इनका अगर 2.5 गुना रेट अगर बढ़ा दिया वेजेस का, तो ज्यादा काम करते. एक काम करते हैं ना, मैं इनका 250 की जगह 700 रुपए कर देता हूं. ठीक है, 700 रुपए कर दिया मैंने. लेकिन अब तुम मांझ गए,
अब तुम मांझ गए, अब बोल रहे यार अगर मैं 2 घंटे भी काम कर लूंगा ना तो 1400 रुपए, मतलब इससे भी ज्यादा कमा लूंगा। यहां दिख रहा है, यहां 12 घंटे काम करने पर 1200 मिलते हैं, यहां पे तुम 2 घंटे काम करोगे तो तुम्हें कितने मिल जाएंगे? 1400 रुपए मिल जाएंगे, इनफैक्ट ज्यादा ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो तुम ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेटेड भी हो, लेकिन इस टाइम पे ना तुम्हारे पास पैसे भी ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब तुम क्या चाहोगे? शिवराज की तरह मेरी एक गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, प्रजय की तरह मेरे पास एक मोबाइल हो, अथर्व की तरह मेरे छोटे छोटे बच्चे हों, अथर्व के बच्चों जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे हों, तो ये सारी चीजें चाहोगे। तुम सोचोगे अब मैं क्वालिटी टाइम इनके साथ एंजॉय करूं, तो तुम क्या करोगे? काम करना कम कर दोगे। तो कंपनी के सीईओ को देखना, कंपनी के सीईओ को देखना, जो 700 रुपए पर आवर के हिसाब से कमाता है, वो क्या करता है? 10 घंटे आता है, निकल जाता है, फिर भी इन लोगों से ज्यादा कमाता है। अब तुम 15, अच्छा चलो तुमने 20 घंटे काम करना चालू कर दिया, यू आर मोटिवेटेड ना, ट्राई टू वर्क फॉर 20 आवर्स। क्या होगा? नहीं करोगे, पैसा ही अक्यूमुलेट होगा, डेली 14,000 रुपए कमा लोगे, लेकिन अब तुम इसको स्पेंड करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए तुम बोलोगे अब काम कम, मेरे को थोड़ी रिटायरमेंट वाली लाइफ चाहिए, अब मैं कम काम करूंगा लेकिन क्वालिटी वाला काम करूंगा। सो देयर इज अ बैकवर्ड बेंडिंग। जनरली क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर? इंक्रीज इन प्राइस, तो तुम सप्लाई भी इंक्रीज करते हो। यहां तुम्हारा प्राइस जब 100 रुपए के हिसाब से रखा था तो तुम 12 आवर्स काम करते थे, जैसे ही मैंने तुम्हारा प्राइस बढ़ा दिया, तुमने ज्यादा लेबर सप्लाई किया मुझे। पर एक लेवल के बाद, आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट, एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद, जब वेज रेट या जब प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तुम कम काम करने लगते हो। सो द ग्राफ फॉर दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, अ बैकवर्ड बेंडिंग कर्व। तुम ही बताओ, अगर तुम इतना ज्यादा कमा रहे हो तो एक लेवल के बाद तुम बोलोगे नहीं, नाउ आई नीड टाइम टू स्पेंड दिस। अभी जब ये 1200 सॉरी पर डे 100 रुपए कमाता था, ठीक है, इसको क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था इसकी वाइफ के साथ? कुछ नहीं, वो तो मारती थी उस टाइम पे इसको, और बच्चे चिल्लाते थे, घर पे अनाज नहीं आ रहा, ऐसे ही घूमते थे, तो ये खराब कंडीशन चल रही थी। तो फिर बाद में जब उसको ज्यादा मोटिवेशन मिला तो इसने ज्यादा काम करना चालू करा, लेकिन एक लेवल के बाद वो मांझ गया। बीवी मारती और कौन मारता है? तुम मारोगी, तुम भी एक दिन मारोगे किसी को। बच्चे कैसे हैं? उसके अच्छा कर ये क्या पैदा करके छोड़ दिया बस? नहीं, अरे हाँ, बीवी किसकी थी? बीवी भी उसी की, मोबाइल भी तेरा, बच्चे इसके पास। तू क्या कर रहा है इनके बच्चों को लेके? खराब बाप बच्चों को मारता है। क्या हुआ? हाँ, गर्लफ्रेंड उसकी, बीवी इसकी, मोबाइल इसका, बच्चे यहाँ पे, पता नहीं कर क्या रहे हो तुम लोग। एक बार बताओ मेरे को चल क्या रहा है जिंदगी में? नालायक ही हो तुम, कर क्या रहे हो? उसकी बीवी नालायक और इसके बच्चे इसको नालायक बाप बोल रहे हैं। बिगड़े बच्चे। चलो, from the table we notice that initially with increase in the wage rate, labor supply increases, but when wage rate increase beyond a certain limit, labor supply will decrease. This is represented by backward bending labor supply curve. इसका नाम क्या है? BBLSC, backward bending labor supply curve. इस पे आ सकता है क्वेश्चन, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। समजला का? पुढे जाऊ का? चला पुढे। अमृता चौधरी, चले आगे। नीड फॉर कैश, बराबर ना? अमृता चौधरी है ना? हाँ, और तुम? अमृता मगर, अच्छा मगर पट्टा तुम्हारा है क्या? तुम्हारे रिश्तेदारों का है क्या? वही वाले मगर ना? लेकिन बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने। मगर पट्टा देखा क्या किसी ने? क्या कर लिया देख के? क्यों गए थे मगर पट्टा देखने? ऐसे ही।
नीड फॉर कैश। तुम्हारे पास ना इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना स्टॉक पड़ा है किसका? कांदे का, प्याज का बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। और तुमने स्टॉक क्यों करके रखा है अपने पास? प्राइस बढ़ेगी तभी मैं बेचूंगा, ठीक है। पर अभी प्रजय के बच्चे जो अथर्व के पास हैं, उन बच्चों की शादी होने वाली है, ठीक है। अभी टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चे बड़े हो गए और तूने उनका बचपन भी नहीं देखा, कैसा बाप है। नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मैं एक अमर तो नहीं है, जिंदगी है अभी, ठीक है। नीड फॉर कैश में क्या बोल रहे थे? उस बच्चे की शादी है, उस लड़की की शादी है। अब शादी में होता है खर्च, ठीक है। तो इसने क्या बोला? समधी जी, मैं पैसे तो नहीं खर्च कर सकता, पर मैं प्याज दे सकता हूं तुम्हें। वो बोले कि प्याज का हम क्या करेंगे, एक काम करो, पैसे लाओ तभी डेकोरेशन होगा, ये सारी चीजें रस्में रिवाज होंगे। तो इस अथर्व ने क्या किया? फिर अथर्व ने ये कांदे को कम रेट में उठा के बेच दिया, जबकि उसने लॉ ऑफ सप्लाई अपने से पढ़ा था। उसने क्या बोला था? जब रेट बढ़ेगा मार्केट में तभी कांदा बाहर बेचूंगा। लेकिन अभी तूने क्यों बेच दिया कांदा? शादी है, मतलब देखो, नीड ऑफ कैश। किसी का भी बच्चा हो, नीड ऑफ कैश की यहां पे जरूरत थी, तो तुमने लॉ ऑफ सप्लाई को बोला। लॉ ऑफ सप्लाई गया तेल लेने, ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से गया, तो शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। इतना अच्छा लड़का, जस्सी जैसा इतना अच्छा लड़का मिल गया है, ठीक है, सज्जन, सुशील, सुंदर, रिस्की, जो भी है वैसा लड़का मिल गया है। रिस्की है ना वो है ना, कौन सी मूवी है उसकी, क्या जेंटलमैन मूवी के अंदर, सज्जन, सुशील, रिस्की, जो भी है। तो बोला जस्सी जैसा लड़का हाथ से चला जाएगा। सर गए तेल लेने, लॉ ऑफ सप्लाई गया तेल लेने। अगर मैं वेट करता रहा प्राइस बढ़ने के लिए, तो जस्सी जैसा लड़का चला जाएगा, मेरे को आज ये कांदा कम रेट में ही बाहर बेचना पड़ेगा। तो अथर्व ने सारा कांदा बेच दिया और मेरा दिल दुखाया तूने, क्योंकि तूने लॉ ऑफ सप्लाई माना नहीं। लेकिन तूने बोला सर ये एक्सेप्शन में पड़ा हुआ था। नाउ रीड दिस, इफ अ सेलर इज गोइंग टू सप्लाई हिज प्रोडक्ट बिकॉज ही नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश, देन एट अ लोअर प्राइस ही विल सप्लाई मोर एंड एट अ हायर प्राइस ही विल सप्लाई लेस। अगर उसको कैश की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो कम प्राइस में भी बेच देगा। कई बार करते हैं ना बिजनेसमैन, या ईयर एंड पर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए ईयर एंड सेल डिक्लेयर कर देते हैं और कम प्राइस पे सप्लाई करना चालू कर देते हैं, कम प्राइस पे सेल करना चालू कर देते हैं। तो बेसिकली ये नीड ऑफ कैश। अगर कैश चाहिए तो लॉ ऑफ सप्लाई को बाजू में रखने का, और अगर कमोडिटी लोअर रेट पर भी सेल कर सकते तो कर देते हैं। समझा? अच्छा, अब किसका नाम लें? किसी को एग्जाम्पल में खींचा। मानसी बुढ़ी हो गई है, मानसी कम से कम 80 इयर्स की हो चुकी है अभी, और इनका महीने का खर्चा, मानसी का महीने का खर्चा 80,000 रुपए है। मेरे को क्या मालूम, मेरे को तुमने इंफॉर्मेशन दी 80,000 रुपए तुम्हारा खर्चा है। हर महीने का तुम्हारा खर्चा नहीं, हर साल का खर्चा, चलो मान लेते हैं हर साल का खर्चा 80,000 रुपए, ठीक है। ये एग्जांपल यहां तक क्लियर हो? पहले मानसी हो गई है बुढ़ी, 80 इयर्स की हो गई है, और 80,000 रुपए महीना बेचारी का खर्चा है। जो भी खर्चे होंगे 80,000 रुपए साल का खर्चा है इसका। लेटर से मानसी आलसी भी है। मानसी बोलती है कि मेरे को ना फिक्स्ड इनकम चाहिए लाइफ में, तो मैं अपना जिस टाइम पे काम वगैरह करती थी कुछ पैसे बचाऊंगी और बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। इस तरीके से डिपॉजिट करूंगी, इतना ही अमाउंट डिपॉजिट करूंगी कि मुझे फिक्स्ड इनकम आती रहे। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 8%। तो मानसी ने कितने रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए कि उसको एनुअली 80,000 रुपीज हाथ में आए? क्रॉस कैलकुलेशन करो ना। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 8%, मतलब तुम कुछ अमाउंट बैंक में, कुछ मनी बैंक में सप्लाई करोगे तो बैंक उस पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 80,000 पर ईयर। तो कितने रुपए बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे?
10 लाख, मतलब मानसी अगर तुमने 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए और बैंक में मतलब 10 लाख रुपए तुमने, ये बैंक है अपना, ये बैंक में तुमने 10 लाख रुपए का सप्लाई कर दिया तो तुमको एन्यूटी मतलब जिंदगी भर तक 80,000 रुपीज पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता जाएगा। टैक्सेशन टीडीएस को साइड में रखो, ठीक है। सडनली क्या हुआ, मानसी बोलती है मेरे बच्चे नालायक हैं, ज्यादा पैसा रखा ना तो वो खर्च कर देते, बर्बाद कर देते, तो मुझे फिक्स 80,000 ही चाहिए। सडनली बैंक में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%। अब बताओ मानसी तुम्हें कितने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, करो ना कैलकुलेट, 80,000 डिवाइडेड बाय 12% करो, कितने, 8,33,333 कितना होता है? ₹6,66,666 66 पैसा इतना तुमको डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि तुम्हें 80,000 पर ईयर भी मिल जाए और तुम्हारे नालायक बच्चे तुम्हारी गाड़ी कमाई, तुम्हारी मेहनत की कमाई को उड़ा ना सके। बराबर है। अब देखना जरा, ये जो तुमने 10 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करे, बेसिकली क्या है, ये सप्लाई ऑफ मनी टू द बैंक है, ठीक है। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से 12% हो गया, तो तुम्हें तो मोटिवेटेड रहना चाहिए ज्यादा पैसे डालने का, पर तुम क्यों मोटिवेटेड नहीं थी यहां पे? क्योंकि तुम्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए। दैट मीन्स अगर फिक्स्ड इनकम भी रही ना, अगर तुम्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए तो तुम कम अमाउंट डिपॉजिट करोगी इन केस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर। आइडियली क्या होना चाहिए था, अगर तुम्हें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो अपन क्या सोचते हैं, ज्यादा पैसा डिपॉजिट करना चाहिए था, पर मानसी को चाहिए था क्या, फिक्स्ड इनकम। तो मेन वर्ड क्या है, फिक्स्ड इनकम। अगर तुम्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए ना तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम पैसा डिपॉजिट करोगे और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा पैसा डिपॉजिट करोगे। समझा क्या? एग्जाम्पल क्लियर हुआ क्या मयूर? एग्जाम्पल क्लियर हुआ? और ये मैथ्स करने में इतना टाइम क्यों लगा तुमको? बाकी लोगों ने तो कैलसी भी नहीं उठाया। ठीक है, सेविंग्स पढ़ लेना एक बार। इफ अ पर्सन, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम। If a person wants a fixed amount of income in a form of interest, he will save more at a lower rate and save higher at a higher interest rate. वैष्णवी समझा? हाँ या ना? हाँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में तुमको लेना पड़ेगा। समझा? यहां तक क्लियर हुआ? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई वापस से बोला, इरिटेट कर रहा हूं मैं, पर फिर से मेरे को बताओ लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ा देना चाहिए अपने को। लेट अस से देयर इज अ स्मॉल राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देयर इज अ स्मॉल राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब इस टाइम पे सेलर ने क्या करना चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए। अगर प्राइस बढ़ गया तो सेलर ने ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए, पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर में इससे भी ज्यादा प्राइस बढ़ सकता है, तो अब वो क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाने की जगह, कांस्टेंट रखने की जगह कम कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर प्राइस जरा सा डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ तो आइडियली इसने सप्लाई को डिक्रीज कर देना चाहिए, पर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस और गिरेगा, और भयंकर गिरेगा, मैं रिकवर भी नहीं कर पाऊंगा। इस टाइम पे वो प्राइस थोड़ा सा भी गिरा ना तो मैक्सिमम अमाउंट सप्लाई कर देगा। ऐसा होता है? कभी देखा है रियल लाइफ में? दो एक आधा एग्जांपल प्रैक्टिकली कभी देखा। कांदा छोड़ के गोल्ड के केस में, गोल्ड के केस में कैसे बोलोगे? कौन है सेलर इस केस में? गोल्ड ज्वेलरी वाला, शॉप वाला। ठीक है, वो क्या करता है फिर? ऐसा नहीं है, तुम किसी गोल्ड वाले के पास जाओ, तुम जितना मांगोगे उतना देता है वो तुमको। गोल्ड स्मिथ के पास जाओ,
रेट बढ़ने वाला है कम होने वाला है वो छोड़ के, वो तो जितना मांगोगे उतना दे देगा। मतलब ये कांदे वाले के पास जाओगे तो बोलेगा मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, पर गोल्डस्मिथ के पास जाओगे तो वो तो बोलता है, हमेशा देता है। प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है जो भी है। शेयर मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं। शेयर मार्केट के केस में लेट अस से मेरे पास 500 शेयर है रिलायंस के, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो आइडियली मुझे उसको सेल कर देना चाहिए मार्केट में और पैसे रिकवर कर लेने चाहिए। पर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा तो मैंने एक्सपेक्टेशन क्या रखी कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो मैं शेयर महंगे में बेच पाऊंगा, तो मैंने उसको सप्लाई नहीं किया। शेयर का प्राइस 500 रुपए था, सडनली 500 से 490 पे आ गया। अब मुझे डर है कि शेयर का प्राइस कल करके 400 रुपए ना हो जाए, मैं तो रिकवरी नहीं कर पाऊंगा लॉस। तो ऐसे समय में मैक्सिमम अमाउंट सेल कर दूंगा। समझ में एक्सेप्शन क्यों है? प्राइस बढ़ता है तो अपना सप्लाई बढ़ाना चाहिए आइडियली, पर यहां पे प्राइस बढ़ रहा है तो अपन सप्लाई कम कर रहे हैं, अपन होल्ड कर रहे हैं, इनफैक्ट अपन अक्वायर करना चालू कर देते हैं। रिवर्स सप्लाई का भी रिवर्स, अपन एक्विजिशन चालू कर देते हैं। समझ में आता है? अपन एक्विजिशन भी चालू कर देते हैं। अपने को लग रहा है शेयर का प्राइस 500 से 510 हो गया है, 2 दिन में 600 हो जाएगा, तो ऐसे समय अपन अपने शेयर तो सेल करेंगे नहीं, इनफैक्ट और शेयर परचेज करना चालू करेंगे उस करंट मार्केट प्राइस पे। तुम बोलोगे फिर जो बेचने वाला बावला है क्या, वो क्यों बेचेगा? वो सोचेगा और शेयर का प्राइस, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, उसमें 20-30 रुपए में शेयर परचेज किया होगा, या उसके भी बच्चों की शादी होगी, तो बेच सकता है वो भी। समझा यहां तक? कितने बजे स्टार्ट किया था अपन ने? 2 बजे तो नहीं किया था, 2:24 पे किया था, हो गए 45 मिनट। चलो दैट्स इट, मंडे को कंप्लीट कर देंगे टॉपिक।